اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ لوگ درود پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. تو آپ روز آ رہے ہیں، آپ کو اب تک سب سے اچھی بات کیا لگی؟ ہاں اب تک ادھر آئیے، ہمارے پاس آئیے. اتنے دن سے آ رہے ہیں، آپ کو سب سے اچھی بات ادھر سب سے اچھی بات کیا لگی آپ؟ مولانا خمینی نے جو بیان کیا وہ اچھا لگا. تو مولانا خمینی صاحب سے کہاں ملاقات آپ کی ہوئی؟ تو کیسے پتا چلا کہ خمینی صاحب جو بیان کر رہے ہیں اچھا بیان کر رہے ہیں؟ اچھا ہاں تو ادھر آئیے. تو خمینی صاحب کی کیا بات ہم نے بتائی تھی؟ شاباش شاباش. اور تو خمینی صاحب کا کوئی بتاؤ پورا حدیث سے ڈرو مت. کیسے نماز پڑھا تھے خمینی صاحب؟ کس پر لیتے تھے؟ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیتے تھے. یعنی جب انتقال سے قریب تھا نا، یعنی جب ان کا انتقال ہونے والا تھا اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ آپ کو بہت اچھا لگا. اور خمینی صاحب کی کیا بات اس نے جو بتائی تھی وہ اچھی لگی؟ شاباش بہت اچھا تم نے بتایا، بہت اچھا بتایا. شاباش بیٹھو. اور کسی کو کوئی بات اب تک کے سارے بیان میں اچھی لگی ہو تو وہ ہم کو بتائے جو موجود رہا ہے. کوئی ہے ایسا جس کو کوئی بات بڑا چھوٹا کوئی بھی آ سکتا ہے؟ بیٹا آؤ. شاباش. سب سے ٹاپ موسٹ جو تم کو بہت اچھی لگی. آؤ ادھر آؤ تم پاس اور قریب ایک قریب اور ایک. ہاں بہت اچھا لگا. تو احکام میں کوئی ایسا حکم جو تمہیں نہیں سمجھ میں آیا تھا وہ یہاں سمجھ میں آ گیا وہ بتاؤ. تکلیف کے بارے میں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ تکلیف کیا ہے. شاباش شاباش. تکلیف کس چیز کی جائے، یعنی تکلیف کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا، یہاں پر آ کر سمر کیمپ میں آپ کو پتہ چل گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور کوئی اہم بات آپ کو جو سمجھ میں آئی؟ اس کے بارے میں اچھا شاباش وہ بھی پتہ چل گیا آپ کو. بہت اچھا. اور یہ پانی کی قسمیں سب بہت اچھا بہت اچھا. شاباش. اردو میں تھوڑا گڑبڑی تھی وہ بھی پورا کلیئر ہو گیا. یہ تو آپ کو احکام کے بارے میں سب تو کلیئر ہوئی ہے، لیکن اور درسوں میں کوئی چیز آپ کو ایسی لگی ہو جو سمجھ میں آئی ہو کہ بہت اچھی ہو؟ اور ہاں نہیں مطلب کوئی بلا اس پہ تکلف پہ اس میں کون سی تمام لوگوں میں درس اخلاق میں کون سی چیز آپ کو بہت زیادہ بہتر لگی؟ تو اس بچے نے سب سے پہلے بتایا اور بالکل جو اس کے دماغ میں اتر گئی تھی وہ بات اس نے بتایا. جو آپ نے نہیں میں آپ سے پوچھا آپ کو کیا اچھی لگی وہ تو اس نے بتایا. آپ کو کون سی بات اچھی لگی؟ ان کو تجوید تو دیا بھائی دیتے تھے. تفہیم. اچھا اچھا. تجوید پڑھنے آپ کو تفہیم و ترتیب سمجھ میں آئی. شاباش بیٹھے. ہاں اور کوئی بہادر ہے جو آگے بتاوے؟ شاباش ادھر آئیے. شاباش. ہاں جزاک اللہ. آپ کو بھی کوئی بات اگر اچھی لگی ہو آئیے. شاباش بہت عمدہ بہت عمدہ. جیتے رہیے. ہاں کون سی بات آپ کو سارے درس میں اچھی لگی ہے؟ بھائی جو درس لیے تھے ہمیں وہ اچھی لگی جو بھائی بتائیں. آپ اپنی بتائیے. اپنی بھائی والی نہیں. آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی؟ سب سے زیادہ جو اب تک آتے رہے آپ درس میں کوئی بات آپ کے دماغ میں بہت اچھی رک گئی ہو؟ والی وہ تھوڑا سا
सी बात आपको समझ जो में? वो अपना वक्त है कभी वो जाया नहीं काम नहीं करते हैं? वो नमाज के लिए भी हॉस्पिटल में पढ़ते हाँ, यानी कभी भी नमाज को छोड़ते नहीं थे। और खुमैनी साहब से क्या आपने सीखा? और मोहसिन भाई ने लिखा हुआ आया था कि वो मैंने साहब के बारे में हाँ, कि शाबाश, मैंने साहब का पूरा नाम क्या है शाबाश, और उनके हाँ, वालिद का क्या है जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत। और वो कौन से किस साल में पैदा हुए ये बताया और किस साल में नहीं, आपको क्या अच्छा लगा बहुत? ये तो बहुत सभी ने कुछ न कुछ बताया। आपके दिमाग में कौन सी चीज रह गई है सब बात? सोफिया भाई जो तस्कीन बना अच्छा अच्छा, और और लल्ला हंसवी का और ये अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ भाई बच्चों, आप में और कोई साहब है? आप भी तो डेली आते हैं नहीं? हाँ, आपको ये दिमाग में है बात क्या अच्छी लगी? इधर आइए, इधर आइए, इधर आप इधर आ जाइए। इमाम खुमैनी के बारे में क्या लगा अच्छा इमाम खुमैनी के बारे में? इमाम खुमैनी के बारे में हमें ये अच्छा लगा कि वो अपना जो वक्त था वो एक सेकंड अपने शाबाश, इबादत में यूज करते थे बहुत एक अच्छा, बहुत सेकंड उनका बहुत वो था बहुत कीमती अच्छा, था उनका शाबाश। और क्या? और उनसे ये सब हम लोग सीखे कि जो सब लोग वो करते हैं गाली देते हैं हाँ, वो शाबाश। करते हैं हाँ, इमाम को कहते हैं कि अरे यार खेल रहे हैं कहाँ जाए नमाज पढ़ना भी तो शाबाश, खेलने का शाबाश। वक्त मिलता नहीं तो ये हम लोग से कहने जा रहे हैं जो खेलते हैं कहते हैं नमाज के टाइम पे हम खेलेंगे कि अगर जो आप लोग खेल रहे हैं और वही वो जो वक्त है नमाज का अगर वहाँ जाके नमाज पढ़ेंगे तो आप जन्नत में जाकर आपको जो खेल रहे हैं ना उससे बड़ा तोहफा मिलेगा जज़ाकल्लाह, जब बहुत आप अच्छा, जाएंगे बहुत ना जन्नत में उसका सिर्फ उसकी सिर्फ एक घास देख के आप कहेंगे कि जन्नत कितना खूबसूरत है और वो वाह, वाह, धरती कितनी वो थी खूबसूरत बहुत गाली गलौज शराब जुआ ये सब बहुत अच्छा। अच्छा एक बात ये बताइए बेटा कि और कोई बात पूरे इतने दिनों में उन लोगों की तरफ से देखिए, कोई इतने दिनों में जो और कोई बात आपके दिमाग में अटक गई हो, तो याद रह गई हो, बहुत अच्छी लगी हो आपको? वही जो जया भाई हम लोग को दो तीन दिन जो अपनी अरे मतलब बहुत पर आप तकरीबन आज ये 10 चलते चलते 20-22 दिन हो गया, उसमें कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो वो बताइए। बहुत ज्यादा वो शुरू से पढ़ रहे हैं ना आप? जी हाँ, तो उसमें आप बताइए कौन सी चीज आपके दिमाग में रह गई? शाबाश, बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। जो जया भाई हम लोग को बताते थे तस्कीन ये हाँ, नहीं इसके अलावा भी बताइए, जया भाई ने तो और भी बहुत कुछ बताया होगा। उनका नाम जो जया भाई बताते थे कि कुछ लोग नमाज के वक्त पे एक हम आपको बता रहे हैं जैसे जया भाई एक बार बताए थे कि वो एक चरवाहा था और फिर एक वो थे क्या नाम है एक नानी जो शाबाश, वो करते हैं नमाज ठीक, ठीक। हाँ, हाँ। वही एक जा रहा था चरवाहा और मतलब उसकी जो गाय भैंस ये सब जो थी ना हाँ, हाँ, वो इधर उधर टहलती थी शाबाश, और वो नमाज का टाइम हुआ जब हाँ। तो बैठ कर पढ़ने तो अल्लाह ने एक आवाज दी और वो मतलब वहीं पर अपना मुसल्ला बिछा दिया अल्लाह की आवाज और से। फिर जब वो जो था मुझे इस्माइल से पढ़ता है हाँ, वो आया उससे पूछा कि आपने कैसे एक बार वो तो उसने बताया कि जब एक हम लोग में तो दिमाग है पर एक बकरी मतलब जानवरों में दिमाग नहीं जब जानवर मेरी एक बात सुनकर फौरन दौड़ाता है। फौरन दौड़ाता है उनके पास शाबाश, तो हम जैसे लोग क्यों नहीं अल्लाह की एक आवाज सुन के क्यों नहीं मस्जिद बहुत अच्छा, शाबाश, जिंदाबाद, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताएंगे कुछ बेटा? हैं? आइए, बिल्कुल एकदम सिंपल हो गई। अगर सब ये बेटा सलवार मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आप हमारी तरफ करीब आइए, इससे भी आवाज आएगी। आप हमें जब भाई का जो हिस्ट्री ऑफ बकरीद थी, बकरीद यानी बकरीद क्यों मनाई जाती है, उसमें बकरीद क्यों मनाई जाती है और जो अल्लाह ने टेस्ट किया था उनसे वो क्यों लिया था, हमें बस यही बता दें कि वो उन्होंने अपने बेटे को
जैसे वजू अभी गुस्ले में हमें दिक्कत हो रही थी, गुस्ले मैयत कैसे करेंगे? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, जब बताया गया हमारे जनाब ने हम लोग को बताया तो उसमें मेरे क्लियर हो गया एकदम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, अकायद में कोई बात आपको याद है? अकायद में जनाब ने वो एग्जाम्पल दिया था कि खुदा को कैसे पहचाने। सबसे पूछा था तो उसमें दूसरे अगर हम लोग लगाएं कि हमारा खुदा हो, हमारा खुदा क्यों लगाएं? नहीं भी लगा सकते। अगर हम हमारा लगा देंगे तो खुदा बहुत खुदा में दोनों खुदा में वो मुकाबला होने लगेगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। ये क्वेश्चन यानी दो खुदा अगर होते दोनों में इख्तिलाफ होता। हाँ ये एग्जांपल में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बहुत। और इसके अलावा कोई बात दिमाग में आपको, ये 20 दिन से आप आ रहे हैं मुकम्मल बिला नागा आप आ रहे हैं माशाल्लाह, आप ये बताएंगे कौन सी बात और अच्छी लगी आपको? नहीं दिमाग में दौड़ाइए भी, आप सोचा नहीं आपने, होगी कोई बात अच्छी जो दिमाग में रह गई होगी। और एक मैंने साथ के बारे में जनाब मुस्लिम ने पाया था कि वो कब पैदा होंगे और कब इंकलाब लाए ईरान में, और कब ये हमें अच्छा लगा कि ये हम लोग पहले से नहीं जानते थे और अब जाने थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कुछ बातें हम लोग को सीखने को मिली। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आपके जिंदगी में जो अभी आप पढ़ रहे थे, उस पढ़ाई के पीरियड में आपको जो कुछ भी वाकया सुना आपने, कभी मौलाना का वाकया सुना होगा, कभी किसी का वाकया सुना होगा कभी, तो उसमें आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या नसीहत मिली, आपको क्या हौसला मिला? ऐसा कुछ है कुछ आपके अंदर कोई हौसला मिला, कुछ हिम्मत बढ़ी, कुछ ताकत बढ़ी? हाँ कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो जो चरवाहट हो रहा था उसकी वजह से हमको नमाज की ताकत पता चली, नमाज क्या चीज है। यानी नमाज के यहाँ ताकत नहीं, शौक बढ़ा। हाँ जज़ाकल्लाह। एनर्जी आपके बदन में किस चीज़ से पैदा हो सकती है? ऊर्जा आपके बदन में ये 20 दिनों से दर्स जो आपने पढ़ा है, किस चीज़ से आपको ज़्यादा ताकत मिली हो? आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके हैं हाँ कि नहीं, किस इस पूरे पीरियड में जो दर्स चल रहा है और भी चलेगा, उसमें आपको किस चीज़ से ज़्यादा मतलब ऊर्जा और ताकत और क्या कहते हैं एनर्जी आपको हासिल हुई? अहकाम से नॉलेज हासिल हुई। नॉलेज हासिल होना, और नॉलेज के बाद सारी नॉलेजों में किस नॉलेज से आपके बदन में ताकत और हिम्मत और हौसला बढ़ा, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हौसला बढ़ा हो, हिम्मत बढ़ी हो, ताकत बढ़ी हो। जज़ाकल्लाह। यानी अल्लाह के ऊपर भरोसा रखने से हिम्मत और हौसला। जज़ाकल्लाह। यही तो मैं पूछ रहा था कि आपके अंदर ताकत देने वाला, अहकाम समझने की ताकत, तजवीद समझने की ताकत, कुरान समझने की ताकत, तफसीर समझने की ताकत, दीन समझने की ताकत, ये सब ऊर्जा किससे मिलती है? अल्लाह से। अल्लाह के ताकत पर क्या काम किया जा सकता है? अल्लाह के भरोसे पर बहुत कुछ, जितना हम लोग कर पाए, जो सोचेंगे हम सोचेगा वो अल्लाह पूरा करेगा। सोचने से पूरा होगा, जितनी बड़ी सोच उसमें हाथ लगाएंगे। हाँ, काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? जितना आप कर सकते। जज़ाकल्लाह। जय शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ साहब, और कोई क्यों चुप करा रहे हैं? इधर आइए, मेरे पास आइए, इधर आइए। माशाअल्लाह, आप बहुत गौर से सुनते हैं, इधर हमारे पास आइए, बहुत समझ से सुनते हैं। बस जरा आप ये सोच के हमको बताइए कि अब तक कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी पढ़ने में? अहकाम ठीक है, वो तो अहकाम पढ़ा आपने। और क्या चीज़? तजवीद। और क्या चीज़? शाबाश शाबाश, बोलो जज़ाकल्लाह। अहकाम, तजवीद और शाबाश। अच्छा, कोई वाकया आपको इस 20-25 दिन में आपके दिमाग में कोई बात रह गई है, ज़हन में कोई बात याद हो, बताइए जो आपको एकदम अच्छी लग गई?
जिसे आपने बड़े गौर से सुना हो? शाबाश, बताओ, बहुत अच्छा बताया, शाबाश। जो सबसे अच्छी लगी हो बात? हाँ बताओ, शाबाश। तुम्ही लोग दुनिया में आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ के तुम्ही लोगों को कुछ काम करना, भी छोटे हो, इंशाल्लाह आगे ताकत मिलेगी तो काम करोगे। तो तुम्हें इस 20 दिन में कोई बात अच्छी लगी हो, कोई काम अच्छा लगा हो, कोई किसी की बात अच्छी लगी हो, किसी के सबक में कोई बात आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो बताइए। शाबाश। अब बिल्कुल गलत सही जो भी समझ में है बताइए, हम आपके साथ हैं। इधर और करीब आइए, और करीब आइए, और करीब आइए, और करीब इधर हमारी तरफ देखिए। कौन वाली बात? टायर वाली बताओ, हम नहीं सकते। ताहिर भाई। हाँ शाबाश, शाबाश। ताहिर भाई, अच्छा ताहिर भाई ने क्या बताया था? शाबाश, तुमने दिमाग लगाया, वाह। तुमने तो सबसे अच्छी बात ये की कि तुम्हें पिछले सबक में तुमको ज़हन में है। ताहिर भाई की कोई बात याद है आपको? मौलाना ताहिर साहब निकला की कोई बात आपको ज़हन में है? थोड़ी सी भी हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा ना बताइए, जितना आपके दिमाग में। हाँ, ताहिर भाई ने क्या बताया था? शाबाश, जज़ाकल्लाह, वाह वाह, शाबाश। इन लोगों ने देखो, ये लोग देखो कि नहीं बोल पाए, तुम अपने दिमाग को देखो कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात ऐसी है जो याद आ रह गई हो कि हाँ ये बात हमने पढ़ा था, हमारे दिमाग में ये रुक गई है। शाबाश, जज़ाकल्लाह। आप बताओ, सोच के बोलो। बोलो, शाबाश। बताओ, जरा सी बता दो, घबराओ मत। शाबाश। हाँ, वाजिब। हाँ, वाजिब, शाबाश। वाजिब, वाजिब में क्या चीज वाजिब है? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। वाजिब वो काम है जिसके करने पर सवाब मिलेगा, न करने पर अजाब। अरे बाप, ये तो बहुत अच्छी बात कही। जब आपको वाजिब याद है तो हराम याद होगा ही। तो हराम वाला पता नहीं। वाह 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 वाह। देखिए, आप सुना नहीं रहते, आपको इतना सब याद है। अभी और कुछ पूछेंगे तो दिमाग में आएगा आपको। हाँ, आप बताइए, ये इसके अलावा आप कुछ बताइए दिमाग में जो रह गई हो। देखिए आपको, अच्छा बता, अब वाजिब तो तय हो गया, समझ गए अब, लेकिन अब कुछ और किसी का सबक दिमाग में हो तो वो बताइए। वजू याद है, शाबाश, बैठे। सही। और कोई साहब है? ये बेटा खेल नहीं हो रहा। और कोई साहब है जो बताएंगे? चलिए अब आगे बात हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आदमी गौर से सुनता है, तवज्जो देके सुनता है, तो कुछ बातें बहुत अच्छी होती हैं तो उसके दिमाग में रह जाती है। अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो बात दिमाग में अब आपका दिमाग उधर लगा है, अपने हाथ की तरफ, दोनों हाथों को अपने रानों पे रखिए, ऐसे समझ रहे ना? तो
लेते हैं समझ सकते हैं जी क्या समझा? जो चीज ध्यान से सुनिएगा वो चीज आपको ध्यान से नहीं सुनिएगा तो याद नहीं रहेगी, ध्यान से नहीं सुनिएगा तो याद। अब आप लोग एक तो सलवार पहले पढ़िए अच्छी से। कभी कभी बातें याद नहीं आती, ذہن में है मगर याद नहीं आती। एक बात बता सकते हैं कि जो याद नहीं कर पाता वो किस वजह से याद नहीं कर पाता? एक बात और है, जो झूठ बोलता है ज्यादा उसको भी चीजें याद क्या होता है? जो झूठ बोलता है ज्यादा उसको भी चीजें याद नहीं रहती। झूठ बोलने से आदमी भूलने का मरीज हो जाता है, उसको याद नहीं होता, हाफिजा कमजोर हो जाता है, यानी याद करने वाली ताकत किस चीज से कमजोर हो जाती है? झूठ बोलने से। एक आदमी से पूछा गया, वो जो चीज पूछा जाता था वो फौरन बता देता था, जो चीज पूछा गया फौरन बता दिया। देखिए इसमें सबसे अच्छे अंदाज में इसने फिक्र की बात बताई। रटी हुई बातों का याद होना और है, इसने फिक्र की बात की है जो इसके दिमाग में बैठ गई है। समझ रहे आप कि बीमारी के बिस्तर पे भी खुमैनी साहब की नमाज कज़ा नहीं हुई, ये इसके ज़हन में यानी बैठ गई, ये बात उतर गई। अहकाम याद करना और नमाज की फिक्र करना दोनों में फर्क क्या है? जिसको नमाज की फिक्र होगी वो आदमी खुद ब खुद अहकाम ढूंढ के याद करेगा, और जिसको नमाज की फिक्र न होगी उसको न अहकाम की फिक्र होगी, न अकायद की फिक्र होगी, न अखलाक की फिक्र होगी, न तजवीद की फिक्र होगी। तो इस बच्चे ने उस फिक्र को पकड़ा कि जिस फिक्र से नमाज भी कायम हो सकती है, अहकाम भी आदमी सीख सकता, आगे बढ़ के सब कुछ सीख सकता है। समझे? ज्यादा इस बच्चे ने उस फिक्र को पकड़ा। तो आप लोगों को बहुत से चीजों को, कोई भी काम कीजिए, पढ़िए, लिखिए, खाइए, गाड़ी चलाइए, साइकिल चलाइए, बात कीजिए, खेलिए, तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा दिमाग लगा के कीजिए। समझे कि नहीं समझे? जब पूरा दिमाग आप केंद्रित करके ध्यान लगा के खाना खा रहे हैं, ध्यान लगा के खाएंगे तो खाना सही तरीके से खाएंगे। देखते रहेंगे कोई गलत चीज, कोई बुरी चीज चबा के खाएंगे, छोटे लुकमे खाएंगे, जल्दी नहीं खाएंगे, बदतमीजी से नहीं खाएंगे। खेलना है, मान लिया आप खेल रहे हैं, तो अगर आप पूरे ध्यान से खेलेंगे तभी आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। अगर आप ऐसे ही खेल रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, बैट चला रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, पैर से फुटबॉल मार रहे हैं, ऐसे आप खेलना भी नहीं सीख सकते। क्यों? जब तक किसी भी काम को, समझे बेटा, किसी भी काम को जब तक पूरे दिल और दिमाग से नहीं किया जाएगा वो काम अच्छा नहीं होगा। अरे जब आपका दिमाग कहीं और होगा, दिल कहीं और होगा, हाथ पैर चल रहा है, जैसे भी इनका हाथ पैर बहुत हिलता है, सुकून नहीं। इस सुकून से आदमी पूरा दिमाग लगा के सुने। ये जो नए बच्चे हैं ये सब के सब बहुत सुकून से सुन रहे हैं, ये काबिल तारीफ बच्चे, अच्छे बच्चे, सुकून, पूरा
किधर हो, जिस काम को भी काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मतलब सिर्फ पढ़ने की बात हो, अगर आप आधा घंटा भी पूरे दिलो दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो वो 8 घंटे के बराबर पढ़ाई होगी। लेकिन 8 घंटा ऐसे टहल घूम इधर उधर दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो क्या होगा? कोई कीमत नहीं उसकी, कुछ आप सीख ही नहीं पाए। खेल आपने आधा घंटा खेला कोई और उसमें पूरा दिल लगा के खेला तो उस खेल की बारीकियां आपको समझ में आएगी, खेल की अहमियत समझ में आएगी। आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मजदूरी कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पंखा बना रहे हैं, तो अगर आप इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो सही तरीके पर उसका काम अंजाम नहीं होगा। किसी भी काम को अगर पूरे दिमाग से काम करेंगे तो उस काम को तो कर ही देंगे और दूसरी बातें भी उसमें समझ में आने लगेगी। क्यों बड़े बड़े प्लेयर बन जाते हैं, आप तो नहीं बन पाते? क्यों बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ने लिखने में निकल जाते हैं? गलतियों को सुधार के आगे हैं? गलतियों को सुधार के आगे नहीं, वो जो भी काम करते हैं उसको पूरी तौर पर पूरी तवज्जो से करते हैं, उसकी हर कमी जाति को नजर में रखते हुए करते हैं, पूरे ध्यान से करते हैं, पूरे मूड से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं। यानी जब वो काम करते हैं तो दुनिया में किसी चीज की तरफ निगाह, जैसे भी हम आपसे कहें निशाना सीखना है, मिसाल के तौर पर निशाना आपको सीखना है ना। जैसे हमने कहा कि आप इस गिलास के ऊपर गोली से निशाना लगाइए। गोले जानते हैं? गोले से इस पर निशाना लगाइए। तीर कमान जानते हैं? तीर कमान से आप इस पर निशाना लगाइए। तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों का निशाना चूक जाता है, वो नहीं लगा पाते, और बहुत से लोगों का निशाना टप से लगता है। क्यों लगता है? जो लोग पूरी तवज्जो इस गिलास पे रखते हैं निशाना लगाने में, उनका दिमाग कहीं नहीं रहता, कुछ नहीं सोच रहा है, न दाएं न बाएं। उनसे पूछा जाएगा भाई क्या देख रहे हो, तो क्या गिलास देख रहे हो, कहा कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं। हमने कहा भाई किताब रखी करना, गिलास सिर्फ दिख रहा है हमको और बकिया कोई चीज। तो जब आप ये ख्याल करके निशाना लगाएंगे तो क्या होगा? निशाना सही जगह पर लगेगा। ये तो भी पूरा गिलास है, गुंदी दिखाया जाएगा, खाली गुंदी, इस पर एक गुंदी बना दी जाएगा, उसी पे आप निशाना लगाइए। तो जब आप पूरे तौर पर उस पर ध्यान देंगे, कोई चीज आप न देखेंगे तो आपका निशाना सही लगेगा। लेकिन अगर आपने इधर उधर देखना शुरू कर दिया तो निशाना सही। इसी तरह से कोई भी काम का जो मकसद लेकर उठेंगे तो उसी काम पे पूरी क्या हो? निगाह, तवज्जो, पूरे तौर पर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, इधर उधर शोर हो रहा, आपको कुछ सुनाई नहीं दे, आप कहाँ डूबे हैं? उसी काम में। आप कहाँ खोए हैं? और उसी किताब में खोए। जब आप इतना डूब के कोई काम करेंगे तभी आप उस काम के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट, बड़े खिलाड़ी, बड़े डॉक्टर, बड़े मुकर्रिर, बड़े निशानेबाज, समझ रहे हैं? ये सब कैसे बनते हैं? काम करते वक्त तो कुछ भी नहीं सोचते, समझ रहे? जैसे पढ़ रहे तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमें कुछ नहीं सुनना है, ना हमको अपना घर याद रखना है, ना कुछ। अब इस वक्त हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारा होठ दिखाई दे रहा है, कान सुन रहा है, दिमाग चल रहा है, बकिया ज्ञान। इसीलिए क्लासरूम में बहुत सी चीजें नहीं रखी जाती, सादा रहता है क्लासरूम। क्यों? ताकि बच्चे का, स्टूडेंट का दिमाग इधर उधर जाने न पाए।
ताकि पूरे तौर पर वो कैच कर सके। कोई भी काम हो, कोई भी, ये रेल बनाना है, बढ़ई का दरवाजे का काम, अगर आप जल्दी कब सीखेगा? जब आप पूरी दिमाग लगा के वहां लग जाएंगे। लेकिन आप खाली जा रहे हैं, बैठ के चले आ रहे हैं, सो के तो सालों लग जाएगा, आप कोई काम सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने तवज्जो किया तो 2 दिन 3 दिन सब सीख जाएंगे। पूरी तवज्जो से अगर आपने कोई काम किया, ये वीडियो बनाना है, ये वीडियो बनाना भी बहुत से लोग पूरी उम्र नहीं सीख पाते, इसलिए कि पूरी तवज्जो उस पर नहीं लगाते कि कैसे होना है, बराबर है चारों तरफ से कि नहीं, किसको बीच में रखना है, किसको कहाँ रखना है। हर काम में अगर आप पूरी, तो आज के इस दर्स में आप याद रखिएगा, अगर आप पूरा ध्यान, पूरा दिमाग लगाकर कोई भी काम कर रहे हैं, तभी वो काम मुकम्मल तौर पर आप सीख सकते हैं और वही काम अच्छा होगा। जिस काम में पूरा दिल लगा के किया जाता है, यानी उसी काम को गोया, अब ये मैंने ये मदरसा बनाया तो पूरा दिल लगा के बनाया, समझ में गया? आपको भेजा जा रहा कि जाइए पढ़िए, पूरे दिल से आप आएंगे नहीं पढ़, यहाँ नहीं, स्कूल कॉलेज में कहीं भी, तो क्या होगा? आप वहां जाने के बाद पढ़, जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों को यही सिखाया। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चे कौन कौन थे? कोई बताएगा? शाबाश, हैं? हजरत हसन, हजरत शाबाश, और जनाबे ज़ैनब और जनाबे उम्मे कुलसूम। समझ रहे आप? तो ये बच्चे थे उनके, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन, जैसे अभी तुम्हारा नाम क्या है? हैं? हसन साहब को इनकी वालिदा ने कहा, जा रहे हो बेटा वहाँ समर कैंप में, समर क्लासेस में? कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा पूरे गौर से सुनना, वहाँ क्या पढ़ाते हैं वहाँ मौलाना साहब जो, और जो पढ़ के आना वो हमको बताना। तो अगर आप अपनी मम्मी को, अपनी माँ को बहुत दोस्त रखते होंगे, प्यार करते होंगे, चाहते होंगे, तो आप यहाँ आकर पूरे दिमाग लगा के बैठेंगे कि हमारी मम्मी ने कहा है कि जो भी आपको पढ़ना है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, उसको हमको आके बताइएगा। तो जब आपको उनसे मोहब्बत होगी तो क्या होगा? तभी आप गौर से सुनेंगे, तभी आप गौर से पढ़ेंगे। हमारी अम्मी ने कहा, हमारी अम्मी ने बताया, हमारी अम्मी बेचारी हमको बहुत चाहती है, हमारा खाना बना के, हमारे कपड़े सही करके, हमको सब ठीक ठाक करके दिया है ताकि हम पढ़ें। और उन्होंने कहा है, ख्वाहिश जाहिर की, क्या ख्वाहिश की है? कि सुन के आना और हमें बताना। इसी तरह जनाबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मासूमीन का नाम मासूम 14 है, उनका नाम जब भी आए तो अगर जोर से न सही तो अपने मन में ही सही सलवात जरूर पढ़ा कीजिए। फिर से सलवात पढ़ते मोहम्मद। जनाबी फातिमा ज़हरा जब इमाम हसन इमाम हुसैन सलाम जाते थे अपने नाना के खुतबा सुनने के लिए, जो नाना बयान करते थे मस्जिद में लोगों के सामने, तो जनाब फातिमा ज़हरा उन दोनों बच्चों से क्या कहती थी कि बेटा आप जा रहे हैं नाना से बातें सुनने के लिए, नाना के सबक सुनने के लिए, नाना का खुतबा सुनने के लिए, नाना की का बयान सुनने के लिए, तो जब लौटिएगा तो आप हमको आके बताइएगा। तो चूंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन हम लोगों की तरह नहीं कि अपनी माँ बाप का कहना न सुने, वो अपनी माँ का इतना कहना सुनते थे कि जाके गौर से पूरी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि उनको अपनी वालिदा से, अपनी माँ से, अपनी मादर ग्रामी से मोहब्बत थी। किसको? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। माँ कौन थी उनकी? जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो वो अपनी वालिदा की बात, उनसे मोहब्बत करते थे, उनको मानते थे, लिहाजा जब वो जाते थे तो गौर से सुनते थे कि भाई हम सुने, और सुन के जाके हमको बताना पड़ेगा अपनी मम्मी को, अपनी वालिदा को जाके बताना, मम्मी ने कहा को आके सुनाना। तो पूरे वैसे ही सुनाते थे जैसे रसूलुल्लाह ने सब बताया था। ये क्यों सुनाते थे? अपनी माँ को मोहब्बत चाहते। आप लोग भी अगर माँ को चाहते होंगे तो माँ ने तो भेजा है आपको, जाओ माँ स्कूल का टाइम हो गया, चले जाओ बेटा वहाँ पढ़ो। समर कैंप में आप लोग आए हैं, ये किसके कहने से? माँ बाप के कहने से ना। तो अब अगर उनसे मोहब्बत होगी तो पूरे गौर से काम आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे, और जब याद करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आज के दर्स का खुलासा क्या है कि हर बात को जो अहम है, जो भी अहम बात है, मतलब गैर अहम बात की बात नहीं कर रहा, जो अहम जरूरी बातें हैं वो हमें पूरे गौर से सुननी चाहिए, और कोई भी काम करना चाहिए तो पूरे दिल से करना चाहिए। जब दिलो दिमाग से आदमी करता है तभी बहुत से बड़े बड़े काम वरना ऐसे फेंक के काम कर देना, जैसे यहाँ होता है ये सब, ये काम क्या हुनर? काम को बैठिए बैठिए कि मजलिस करनी है तो कितने लोग आ सकते हैं, कै बजे शुरू होगी, कै बजे तक होगी, क्या बांटना है, कैसे बांटना है, कि तरीके हमारे खराब जो हो रहे हैं उन तरीकों से बचा जाए। हमको मजलिस सुनने में मजलिस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तबर्रुक की तरफ या और दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो। जब पूरा दिमाग लगा के सुनेंगे मजलिस तो क्या होगा? अच्छा, दिमाग कब लगेगा? सड़क पे खड़े होकर दिमाग लगेगा? सड़क पे खड़े होकर माइक से सुनने दिमाग लगेगा? फर्श पे जाके बैठ गए हैं और एक दूसरे को कोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो दिमाग लगेगा? नहीं लगेगा। अलग अलग बैठे और पूरा दिमाग मजलिस की तरफ, पूरा दिमाग नमाज के लिए खड़े हो तो पूरा दिमाग अल्लाह की तरफ, नमाज की तरफ, पूरा दिमाग। तो जब उसका तब इबादत भी बहुत अच्छी हो जाएगी और उसी वजह से सारे काम बेहतर होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी छोटा सा झाड़ू लगाना भी है, एक छोटा सा काम है ना, बहुत से लोग ऐसा लगाते हैं तो वो कूड़ा पड़ा रह जाता, उन्होंने ठीक ठाक कर दिया, लेकिन कुछ उस काम को बेहतरीन करने की कोशिश करते वो नहीं करते। कुछ तो झाड़ू का जहाँ झाड़ू लगाओ मसाज करो तो यही झाड़ू देगा, लेकिन जो समझदार झाड़ू देने वाले होंगे तो जरा कोने को भी ऊपर से नीचे तक ले लेंगे कि कहीं जाला ना हो, कहीं कोई चीज ना हो, तो वो तमाम चीजों को कायदे से उसको साफ करेंगे। क्या समझा? मतलब ये कि काम को, जो भी काम कीजिए उसको पूरे दिमाग से, पूरे दिल से, पढ़ना हो, लिखना हो, सीखना हो, सिखाना हो, समझाना हो। अब मान लिया हम कहीं और सोचते रहे तो आपको कुछ पढ़ा पाएंगे? मैं आपके हर बच्चों को हालत देख रहा हूँ, चेहरा देख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये लोग ये लफ्ज बोलने में समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसलिए कई तरह के लफ्ज बोल रहा हूँ। केंद्र, अब मरकज कहे तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? केंद्र, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, मरकजी नुक्ता, समझे आप? तो हमारी ये क्यों हम ऐसे कई मरतबा बोल रहे हैं? ताकि आपके दिमाग में उतर जाए, और यही हुनर है। वरना हम बोलते रहें और ये न सोचे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कोई फायदा बोलने का नहीं है। इसी तरह कोई काम करने का फायदा नहीं है अगर पूरी तवज्जो से काम
नहीं किया जाएगा। हर काम पूरी तवज्जो से होना चाहिए। मोटरसाइकिल चला रहे तो पूरे दिमाग से चलाएं, फिर इधर उधर दिमाग में न रहे। पूरे दिमाग से बाइक चलाएं, पूरे दिमाग से कार चलाएं, पूरे दिमाग से कोई बना रहे हैं कोई आर्ट, पूरे दिमाग से आर्ट बनाएं, तो बहुत सी चीजें सामने जो नहीं रहती वो भी सामने आ जाती है। अल्लाह से दुआ है कि आप हजरात को अल्लाह ऐसा काम और पढ़ने लिखने का दिमाग अता करे कि जो जिस काम में लगी है उसको पूरे दिल और दिमाग से कीजिए। पढ़िए तो पूरे दिल और दिमाग से क्या कीजिए, पढ़िए तो उसका फायदा। अब इतनी देर बैठे भी अगर मान लिया 3 घंटा आप बैठ गए यहाँ और आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो बेकार घर बैठे, हमारा बोलना भी बेकार, आपका बैठना भी बेकार। लिहाजा बैठे भी हैं तो कम से कम हम अपना पूरा दिमाग लगा के कैसे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अंगूठे में आके एक सांप लिपट गया। सुना नहीं ये वाकया? हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, शैतान सांप बन के आके इमाम की अंगूठे को चबाने लगा, मुंह में लेके काटने लगा। अब आप सोचिए सांप काट रहा तो उनको पता चलना चाहिए ना, लेकिन उनको पता नहीं चला। वो नमाज पढ़ते रहे, वो थक गया, काट काट चला गया। तो जब आप नमाज पढ़ चुके तो एक आवाज आई, अंता ज़ैनुल आबिदीन। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सारी दुनिया के इबादत करने वालों के लिए जीनत है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद समझ रहे ना? लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि सांप ने काट लिया, उनको पता भी नहीं चला? बता सकता है कोई आदमी ऐसा क्यों हुआ कि सांप ने उन्हें चबाया और उनको पता क्यों? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, अल्लाह की इबादत तो सब करते हैं, आप भी कर रहे हैं। अल्लाह की इबादत करने में आपका पैर पे आके सांप चढ़े तो आप करते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे। और सांप काट रहा आपके पैर में तो इबादत करते रहेंगे, भागेंगे ना? इमाम नहीं भागे, तुम बताओ क्योंकि उनका पूरा ध्यान नमाज पे था। जज़ाकल्लाह, उनका पूरा दिमाग उस वक्त अल्लाह के ऊपर था। उनका भरोसा पूरा अल्लाह, भरोसा नहीं, दिमाग दिल सब किधर था? कुछ नहीं उनको सुनाई दे रहा था। इसीलिए जो लोग अल्लाह के ऊपर पूरा दिमाग लगा देते हैं उनको चोट भी लगती है तो उनको पता नहीं चलता। बैठिए। तो पूरा ध्यान लगा के जब कोई काम कीजिएगा तो दुनिया की कोई चीज इधर उधर की सुनाई तभी आप उस काम में सबसे आगे बढ़िएगा। बैठ लेके खड़े हैं आप, उधर से गेंद मारा, अब अगर आप गेंद के अलावा भी कुछ देख रहे हैं तो आप नहीं मार सकते कायदे से, मारेंगे कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर आप गेंद को देखते रहेंगे तो गेंद की चाल, स्पिन किया, क्या किया, कैसे आ रहा है, दाएं गिरेगा कि बाएं आएगा, क्या होगा, इसको बहुत तेज आपको सोचना है। ये कब सोचेंगे जब पूरा दिमाग कहीं न रहे, उसी बाल पर और अपने बैट के मारने पर, तब आप बैट और बल्ले वाले बेहतरीन तब ऊंचे ऊंचे खिलाड़ी आप बन सकते हैं। उसी तरह से
जिस काम में भी आप पूरे दिल से लग के करेंगे, वो काम को अगर चाहते उस काम में सबसे ऊंचे बन जाए तो कैसे बनना पड़ेगा? पूरे दिल और दिमाग से उसको काम करना पड़ेगा। पढ़ाई में सबसे ऊंचे बनना चाहते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए? पूरे दिल और दिमाग से लगा के। मौला अली के पैर में तीर लग गया था एक जंग में, लगा था कि नहीं लगा था? तो जब वो बैठे रहते थे, वो निकलवाते थे तो तड़प जाते थे। क्या होता था? तड़प जाते थे मौला अली। क्या हो जाते थे? तड़प जाते। एकदम इतना दर्द होता तो चूहा हुआ था ना, तीर में वो बना रहता है फांक, तो वो खींचने में दर्द होता है ना, तो जैसे ही खींचा जाता था मौला अली सोने लगते थे, तड़प जाते थे। रोने का लफ्ज मैं गलत कह गया, तड़प जाते थे, बेघर हो जाते थे। तो रसूल अल्लाह से कहा कि ये तीर कैसे निकाला जाए? जब अली नमाज में हो तो निकाल ले। क्या हो? अली नमाज में हो तब निकाल ले। तो नमाज में जब वो लगे तब निकाल ले। तो क्या किया? निकाल लिया। और उनको पता चला? नहीं, क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान नमाज पे था। जज़ाकल्लाह। जब भी कभी आपका ध्यान अपने काम पर पूरा लगा रहेगा तो क्या होगा? कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपको कोई और चीज पता नहीं चलेगी और वो काम सबसे अच्छा काम होगा। और फरमाए इसीलिए हम लोग किसी काम में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम उस काम को पूरे कायदे से, पूरे दिमाग उदेश से नहीं करते और टाइम गुजरता रहता है। और जब छोटे में नहीं किया तो बड़े से कैसे कर सकते? बड़े होने के बाद आदमी का दिमाग वो नहीं रह जाता। अब आप हमसे कहिए जब बैठ के याद करें, में याद होगा? कुछ भी नहीं याद होगा हमको, कुछ भी नहीं याद होगा। याद करेंगे भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों का दिमाग क्या है? जिस चीज को भी अगर आपने गौर से सुन लिया वो फौरन याद हो जाएगी। और सोते वक्त उसी को सोचिए, सोते उठते बैठते सब उसी वक्त सोचिएगा तो वो पूरी बात एकदम दिमाग में आ जाएगी। इसी तरह से अगर किसी काम में आप लगे हैं तो उस काम के बारे में हर वक्त सोचिए कि अगर गेंद ऐसे मारते तो यूं हो जाती, यूं मारते तो यूं हो जाती, बैट यूं चलाते तो ऐसे हो जाती। तो आपके पास बैट और गेंद चलाने का हुनर बहुत अच्छा आ जाएगा। वरना हुनर खेलते तो सभी, खेल तो हो सकता है मगर आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी नहीं। बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन काम करने वाले, बेहतरीन पढ़ने वाले कब बनेंगे? जब आप पूरे दिमाग से उस काम को करेंगे। अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए कि आप अपने पूरे दिमाग से अगर काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छा, खूबसूरत, बेहतरीन होगा और उसमें आपको तरक्की मिलेगी। और अगर अल्लाह का तसव्वुर दिमाग में रहेगा, बिस्मिल्लाह करके वही काम करेंगे, अल्लाह के नाम से काम करेंगे, अल्लाह के भरोसे पे काम करेंगे तो उस काम में और बरकत होगी। कम कीजिएगा ज्यादा दिखाई देगा, थोड़ा पढ़िएगा उस थोड़े पढ़ने से ज्यादा फायदा उठा लीजिएगा। लेकिन अगर अल्लाह को शामिल न कीजिएगा तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी फायदा नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। अब अल्लाह से यही दुआ है कि आप हजरात जो भी दुनिया में काम करें वो पूरे दिल और दिमाग से काम करें, पूरा दिल लगा के काम करें, ताकि दुनिया में अपने काम में, अपने इल्म में, अपने तालीम में सबसे आगे, सबसे बुलंद, सबसे ऊंचे बने और मुल्क की, पूरी दुनिया के इंसानों की और अपने कौम की, अपनी मिल्लत की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।